और ठीक है पैकेज मैन, ये सारा दिन कंफ्यूज रहेगा हुआ क्या है मेरे साथ, ये पूरी उसके साथ कबाब्स हैं पहले से सो ब्यूटीफुल, मतलब आई तो फेल इन लव विद इट। पूरी ट्रेन उतर गई बाहर। उससे गंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो ये चीज होती है, बाहर जाते ही इंडियन खाने का मन करने लगता है। बहुत ही फनी स्टोरी है इसके अराउंड। यू डोंट हैव टू बी लाइक हाँ यार 10 कंट्री और यहाँ गया हूँ, नॉर्मल रहो। यहाँ वो ऑप्शन तो नहीं है, वॉशरूम के बाहर ऐसे दौड़ जाऊंगा ना। Two amazing people who are getting awkward right now. He is right, we are very awkward. मेरी तो फटी पड़ी थी। कई बार एक वॉचमैन को देख के डर लगने लगता है, मेरी टांगे कांप रही हैं और Hello everyone and welcome back to another video. Today we have Anmol and Abhishek with us and they are the founders of Sprint Visa. And in this podcast we will be discussing a lot of things around credit card, travels and visa, and also how to build tech companies in the last decade versus this decade. So this is going to be a very interesting podcast but a long podcast. So watch it till the end. You will find out something very valuable for sure. They are from Reward Mavericks and I know them from X and ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, although हम एक दूसरे को जानते हो, but काफ़ी interesting stories हैं. So please introduce yourselves. Okay, so Anmol and me and Abhishek, we've both been friends for like the last 15 years and अभी business भी एक साथ कर रहे हैं and मेरा background जो है वो tech का है और that's about it I think. Yeah. And so again, Abhishek this side and मेरा जितना background रहा है खुद का business नहीं, but I've always worked on with tech companies on the business side of things. As a product management, like looking at pretty much everything, not mastering anything, but dabbling into everything and so on. So and दोनों का एक sort of like common love है कि हाँ credit cards and travel. तो that also spawn जो अभी current venture start कर रखा है. So tell me the different kind of US visas in short. तो यार as far as वैसे तो काफ़ी varieties हैं US वीज़ा की, but as far as Indians are concerned primarily तीन सबसे important visas हैं for Indians. One is F1 visa जो एक student route देता है, you get the opportunity to study there. It is F1 visa, उनका dependent आ जाता है तो F2. Then the second is after job you get an employment, so that translates to H1B. And उनका डिपेंडेंट वीजा H4. So जॉब कर रहे हो तो आप H1B and आपके एम्प्लॉयमेंट 3 साल में रिन्यू होता है ना? 3 साल. So you get a visa for 3 years and then you either keep renewing it or go for the green card. And the third one is B1 B2, one of the most popular visas. I think it might be one of the most issued visas as well, which is for your tourism and business visits. So it's a club visa. So ऐसा नहीं है कि आपको business के लिए अलग मिलता है, business visit के लिए अलग मिलता है, tourism के लिए अलग. So B1 B2 is one single unit. Tourism, medical treatment and business visits. So at the time of application, you have to clarify कि मैं किस चीज के लिए जा रहा हूँ इनमें से, but the visa is usually issued as a club visa. And also the longest duration visa that is issued, F1 is primarily dependent upon, जैसे मेरा F1 था, so it was a 5-year visa, but it is only valid till I am a student. अगर मैं छोड़ के आ जाता हूँ या बीच में मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती है, it's not valid for the entire 5 years. So उन्होंने stamp तो कर दिया. Same goes for H1B. H1B is 3 years. B1 B2 is a 10-year visa. जो आपको अलाउ करता है मल्टीपल एंट्रीज ऑफ 6 months at a time. मैक्स आप 6 months at a time. फिर आपको एक बार वापस आके आप दोबारा जा सकते हो. हाँ, so there is also a gap in between. ऐसा नहीं कि आप एक दिन बाहर निकल के फिर 6 महीने चले जाओ. So ऐसा होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर would raise questions कि भाई तुम अभी तो आए थे, तो अगर तुम टूरिस्ट हो तो तुम अभी क्या करने आए हो. In fact, staying the whole 6 months could be an issue as well. Obviously. ठीक है, तुम्हें चाहे 6 महीने की एंट्री ग्रांट की गई है, बट टूरिज्म पे 6 महीने रह रहे हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई 6 महीने तक क्या कर रहे थे, डोंट यू हैव अ जॉब बैक होम. ठीक है. So primarily 6 months कौन रुकता है कि जैसे if I am living in US, I am settled there, मेरे पेरेंट्स अगर आएंगे, right? If there is someone who is coming as a true tourist intent, तो वो तो 10 दिन 15 दिन हद से 20 दिन लगा के निकल जाएगा. हाँ, मतलब लोग करने वाले भी होते हैं, बट मोस्ट पीपल रैप इट अप इन 2 to 3 weeks. या फिर आप बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो कि भाई मेरी मीटिंग्स लाइंड अप थी, 2 मीटिंग्स थी 1 महीने, आज 1 महीने अगला, या कोई वाई कॉम्बिनेटर का एक प्रोग्राम होता है जो 3 months का होता है, आप उसके लिए आए थे, बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं लॉन्ग टर्म वाले. So other than these, there are a few other categories of visas as well. जैसे L category है, similar to H category of visas, it's an employment visa, but वो primarily जैसे
जो इंटर कंपनी ट्रांसफर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर और ऐसे सब लोगों के लिए ऑफशोर ऑनशोर. हाँ वो उनके लिए रहता है जो यहाँ किसी का लेट्स से Amazon के लिए काम कर रहा है and Amazon sends him across for let's say on site for 3 years. मतलब it's not actually on site तो वो उसमें आ जाता है ना टर्मिनोलॉजी की क्लाइंट जहाँ पे है वहाँ भेज रहे हो. Amazon के US ऑफिस में भी भेज रहा है तो that as well is L कैटेगरी ऑफ वीजास. एंड उसके बाद E कैटेगरी है जो entrepreneurs के लिए है. वही अलग तो E2 वीजा, E4 वीजा. E2 आई बिलीव इंडिया इज नॉट अ ट्रीटी पार्टनर. E2 इंडियंस को नहीं मिलता है. बट EB5 with investment or something. हाँ so investment visas are here primarily. Golden visa EB5 हाँ EB5 is a visa that Indians can get as well. but हाँ queues लंबी हैं ये वो सब nuances हैं बहुत सारे. So we recently ifs and buts हैं. Trump election जो उन्होंने आया था कि I'll sell for $5 million. So that is a different thing. But EB5 is something where you require investment. I think 925 million or 925,000 or $1 million or so. नहीं, it's more than that I believe at the moment. but चलो मतलब it's somewhere around that visa. We don't in that हमारा वो नहीं है, main area नहीं है ये. We don't know much about it, but it's an investment visa. तो मैं मतलब अपना US वीजा का एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मेरा भी अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही लाइक आया. एक तो लाइक जब अप्लाई किया था आई थिंक 1.5 साल कुछ का अपॉइंटमेंट वेट टाइम था. तो बट मेरे को चाहिए भी नहीं था उस टाइम पे. एक्चुअली मैं शादी थी बीच में तो फिर था कि यार अपॉइंटमेंट लगा के तो छोड़ देते हैं, जब आएगा तब देखा जाएगा. तो और काफ़ी सारे ना उस पूरी जर्नी में मिसकंसेप्शंस मैंने खुद ने फेस किए और देखे और उनको सॉर्ट आउट भी किया. तो काफ़ी सारी लर्निंग्स भी रही उस पूरी प्रोसेस में. राइट तो पहले तो डाल के छोड़ दिया उस टाइम पे है ना. फिर सीधा 1.5 साल बाद जब आया तो DS-160 तो होता है तो वो सेव किया ही नहीं था. पता ही नहीं था 1.5 साल में तो चीज़ें चेंज हो जाती है 1.5 साल 2 साल में. तो आई डिडंट नो एक तो ये वाली चीज़ कि 1.5-2 साल में तो DS-160 चेंज करना होता है. ये कहीं मेंशन नहीं है. तो YouTube पे इतनी 50 वीडियो है US वीजा को लेके, वो मेजॉरिटी किसी ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताई ही नहीं रखी कि भाई ये चेंज भी करना होता है. कई ब्लॉग्स में मेंशन नहीं है. कुछ मेरे को लाइक नहीं पता था उस टाइम पे. तो आई हैड अ टॉक विद प्रियेश भाई आल्सो, वन ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, एंड He's good at what he does. yeah, shout out to him also. तो he helped me out with it कि भाई नया करना पड़ेगा. एंड आई रिमेंबर मेरा इंटरव्यू था 4 दिन बाद है ना. एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं ऑब्वियसली, तो उन लोगों से मेरी बात चल रही थी. उसको मैंने बोला ना कि यार ऐसा होता है क्या, दोबारा करना होता है. तो वो उन लोग वो तो वहीं रह रहे हैं, वो H1B पे हैं. यार हमें आइडिया नहीं है. एक तो फिर उसको एकदम से याद आया कि अरे हाँ ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था. उसमें ये भी है कि अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स जो है पोस्ट कोविड ही इतने लंबे हुए. Exactly. पहले नहीं होते थे. So because अब साल की वेटिंग है, साल में you travel to other countries, circumstances would change, job would change. Exactly. पहले क्या होता Multiple था things. प्री कोविड, जब जैसे मैंने वीजा अप्लाई किया था अपना, मेरा प्री कोविड स्टूडेंट वीजा था. So I got an appointment कि मैंने आज अप्लाई किया, मुझे 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट. 15 दिन में क्या ही circumstances चेंज हो गए. True. तो it wasn't a like मतलब इट्स नॉट अ बैक ऑफ द माइंड की चीज कि हाँ DS-160 चेंज करना है. ये सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ है कि योर DS-160 could change. Okay. So maybe maybe in the future if wait times come drop again to maybe like 15-20 days, this will again become obsolete कि आपको DS-160 update. because waiting time ही काफी लंबा है. So that said, there's another thing. पहले लोग usually क्या किया करते थे. So DS-160 फॉर्म जब आप शुरू करते हो, so they give you a reference number for it, जिसके against आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है. True. राइट. सो लोग क्या करते थे कि DS-160 शुरू किया एंड कभी कंप्लीट नहीं किया, अपॉइंटमेंट ले लिया बस. So you could complete it late at a later time as well, but before your appointment obviously. By the time you are visiting the biometric center, तब आपको आपका DS-160 complete होना चाहिए. तो अभी there have been recent changes to it. I don't remember the exact number. जैसे DS-160 का क्या होता है, एक्सपायरी भी होता है. So even if you don't complete it in a certain number of days, it will vanish from the system. ठीक है. तो लोग क्या करते थे कि वैनिश हो भी गया है तो भी कोई नहीं, जस्ट फिल इन अनदर DS-160. बायोमेट्रिक के टाइम पे तुम उन्हें हैंड ओवर कर सकते हो नया DS-160 एंड देन जस्ट मेक द चेंजेस. सो अभी रिसेंटली there's this rule that has come up that you need to have it completed before that. अगर आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हो और तुम्हारा DS-160 जो पहले वाला था जिस पे तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया है वो तुमने कभी कंप्लीट ही नहीं किया था एंड इट वैनिश्ड फ्रॉम द सिस्टम, यू वोंट बी अलाउड टू चेंज योर DS-160. यू स्टिल कैन चेंज इट बट द अर्लियर वन शुड हैव ऑलरेडी बीन completed a submitted form. So you take both of them and tell them that ये पुराना है, ये नया है, please So update. if you read FAQs on the US visa website, it still says कि भाई तुम्हारा कुछ minor change है तो you can fill up a DS-160 and tell it to the visa application center staff कि भैया मुझे ये change करना है, change it for me, and they are required to change it for you. If they don't,
just show them that it says so on the website. Exactly. But अगर तुम्हारा DS-160 incomplete है और या vanish हो चुका है system से, then it might be a problem. True. तो लाइक वही था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस थी बायोमेट्रिक के लिए, दोनों लाइक लेके जाने थे एंड आई थिंक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस थी बायोमेट्रिक वगैरह, लिटरली टुक मी 5 मिनट्स वो सब होने में। एंड अब सबसे बड़ा पार्ट था जो कि इंटरव्यू वाला था, लाइक मेरी तो फटी पड़ी थी एंड ऑब्वियसली सभी की ऐसी होती है वहाँ पे, बिकॉज एम्बेसी जा रहे हो आप, वहाँ पे माहौल इतना टाइट होता है, पूरा आपका सिस्टम उतरवाते हैं, इट्स लाइक एयरपोर्ट चेक इन आप कर रहे हो। फेसिंग द पर्सन ऑफ अथॉरिटी, कई बार एक वॉचमैन को देख के डर लगने लगता है, और यहाँ तो एंड मतलब एवरीबॉडी इज रूड टू यू, वहाँ पे कोई प्यार से बात आपने नहीं कुछ करता। गलत नहीं किया है, बट इट्स अ वेरी बिग डिसीजन दैट्स हैंगिंग ओवर योर हेड एंड यू आर लाइक यार मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। Yeah. एंड जब हम यूएस वीजा का किसी का इंटरव्यू प्रेप कराते हैं ना, वी टेल वन थिंग कि कोशिश करना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रहे, एग्जैक्टली कि आपके फेस पे टेंशन रहे, इवन दो इफ आई माइट गो देयर मेरे फेस पे दिख रही होगी हाँ. मतलब, बट इट्स कि भाई जितना कोशिश करके नॉर्मल रहना। हाँ, So I'd like to share something here. मेरा और मेरी वाइफ का इंटरव्यू था सितंबर ऑफ 2021। तो ऑब्वियसली उससे नहीं पता था ज्यादा कि क्या फंडा है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सो मैं उसको प्रेप कर रहा था कि यार ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ये है वो है, ठीक है। एंड इंटरव्यू शुरू होता है, मेरी टांगे कांप रही है और मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, एंड वो कॉन्फिडेंटली बोल रही है मजे में सारा, बट आई थॉट दोनों का वीजा है, मतलब यूजुअली ऐसे केसेस में एक साथ ही अप्रूवल या डिनाइल होता है, बट हर केस में नहीं होता। इन सम केसेस कुछ किसी का डिनाइल एंड किसी का अप्रूवल हो सकता है, बट दोनों का मैं वही कह रहा था ना, हम बोल देते हैं हाँ. हमारा खुद का चाहे वो हो रहा हो, बट हम दूसरे को बोलते हैं भाई थोड़ा थोड़ा कोशिश करना नॉर्मल रहो। अरे समटाइम्स दैट इज वही मैं इमोशंस कंट्रोल में रखना कि ना ज्यादा अप ना ज्यादा डाउन। उसी चीज पे आ रहा था कि जो वो बोलना है ना आपका, वो बहुत मैटर कर जाता है उस टाइम पे, बिकॉज Right. अब जैसे लाइक दिल्ली होता है इंटरव्यू, तो लाइक आई एम इन जयपुर, तो पहले तो यहाँ से आपको वहां जाना है, फिर उसके बाद में अब वो एक डाउट रहता है कि शेंगेन में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, मैं तो निकलवा लिए थे सारे प्रिंट आउट, लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि because अगर पूछ किया तो वो तो है ही। उसके साथ में जितनी वीडियोस हैं इंटरनेट पे अवेलेबल या जितने ब्लॉग्स हैं, सब पे लिखा है भाई 50 चीजें लेके जाओ, भर के ले जाओ, और वो वहाँ पे था तो 50 नहीं, जैसे जनरल रूल ऑफ थंब, कैरी और बैंक स्टेटमेंट और आइडिया, Obviously, मतलब they are. बेसिकली योर फाइनेंशियल्स जो आप शो कर सको अपना। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप भाई, ओवर शेयर नहीं करना, Exactly. जितना पूछा जाए उतना बोलना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जबरदस्ती नहीं पकड़ाना। True. तुमसे पूछा जाता है वेयर डू यू वर्क, तुमने बता दिया, व्हाट डू यू डू, तुमने बता दिया। ये वेयर डू यू वर्क का मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रूफ दो कि तुम कहाँ काम करते हो। वेयर डू यू वर्क का मतलब खाली ये है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, दैट्स इट। डू नॉट ओवर शेयर, डू नॉट शो एनी डॉक्यूमेंट थ्रू द विंडो कि भाई ये देख लो मैं यहाँ काम करता हूँ। डेस्परेशन नहीं दिखाना है। एक वन ऑफ द मोर सिंपलर क्वेश्चंस टू आंसर, बट जहाँ पे बंदा ये कर सकता है ओवर शेयरिंग, इज हैव यू बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर? उसका आंसर यस है। Yes. अगर आप कर रहे हो, उसका आंसर ये नहीं कि brag. आई हैव बीन टू 10 कंट्रीज, आई हैव बीन टू XYZ। अगर उसे पता करना होगा ना कि कौन आपने DS-160 में लिखा है, और उसे कंफर्म भी करना होगा ना, वो आपसे पूछ लेंगे। True. यू डोंट हैव टू बी लाइक हाँ यार 10 कंट्री और यहाँ गया हूँ, बढ़िया मजे आए। So अभी रिसेंटली किसी एक फैमिली का मुंबई में इंटरव्यू था, एंड द लेडी was the primary person जो कन्वर्सेशन करने वाले थे वीजा ऑफिसर से। उन्होंने मुझसे सारी बात की कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड अप्रूव हो गया वीजा। एंड उसके बाद उनका फोन आता है, कह रही है अमोल दैट आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा ना कि हैव यू एवर बीन आउटसाइड इंडिया, तो मैं तो बोलने वाली थी हम तो जाते ही रहते हैं जी ठीक है, बट आई रिमेंबर्ड व्हाट यू सेड एंड आई सेड जस्ट सेड यस। नहीं तो वही एग्जैक्टली वही चीज थी। तो मैं तो काफी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करवा दिए सारे, एंड बिकॉज सब वीडियोस में यही था, उसमें था, और फिर क्योंकि ये भी था कि अब वहाँ पे कहाँ प्रिंट आउट करूंगा, फिर दिल्ली में यहाँ से लेके जाने थे। फिर आई हैड अ कॉल विद प्लीज, जैसे मैं बता रहा था, तो लाइक ही टोल्ड मी वन थिंग, मेरा तो माइंड फ्लिप हो गया उसके बाद। मतलब ये एग्जैक्टली जो आप चीज बता रहे हो, बट उस टाइम पे जब आप जा रहे होते हो ना, तो आपको लगता है यार कुछ रह ना जाए, ये ना हो जाए। he said भाई यूएस एम्बेसी hates documents, है ना, राइट। you don't need to carry documents, और ये सब बसड़ कुछ नहीं लेके जाना, और ऐसा भी नहीं जाते ही पकड़ा दो या ये कुछ भी कर दो, पकड़ाना बिल्कुल नहीं भाई, Keep it in the side. कुछ नहीं। राइट। हाँ मतलब hates documents, true. Don't carry documents में नहीं कहता, carry just the right few amount things, of right documents, amount. the right amount of documents, but वो भी in all likelihood Priyesh is very right about it, नहीं लेके जाएंगे।
तो मतलब your luck has to be really bad कि वो आपको बोले कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो वैसा वो है But तो वहाँ- प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला केस वहाँ पे फैमिलीज थी, उतने बड़े बड़े बैग भर के लेके आए थे, मतलब और जैसे उनको एक उसमें क्या एक दिक्कत होती है ना, कुछ एक मांग लिया ना, अब उन निकालना, 100 डॉक्यूमेंट्स में से जो एक पर्टिकुलर मेरे सामने लिटरली, मतलब मेरे 10 विंडो होती हैं ओपन वहाँ पे, मेरे सामने किसी ने पूछा, उसका भाई फाइल गिर गया नीचे, और फिर वो भाई टांगे तो काम भी नहीं होता। So I'll tell you, B1 B2 जैसे नॉन डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, जैसे मेरा स्टूडेंट वीजा था तो मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था बिकॉज देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड I-20 जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, वेयर हम कॉलेज को प्रूव करते हैं कि वी हैव सफिशिएंट फंड्स टू स्टडी इन द यूएस एंड तो एवरीथिंग, either you show it through loans or your, तो वो कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट देता है, सो वी हैव टू कैरी दैट, तो I-20 में आपका लिखा होता है। तो बट स्टूडेंट कंपेयर टू लाइक वो H-1B में आई एम प्रीटी श्योर डॉक्यूमेंट एक दो चाहिए होते होंगे। जब मेरा वीजा हुआ था H-1B, सो देयर वाज अ H-1B का लेटर आया था कि आपका H-1B अप्रूव हो गया। मैं ऑब्वियसली स्टैंपिंग के लिए गया नहीं बिकॉज आई लेफ्ट दैट प्रोसेस इन बिटवीन, सो आई एम अज्यूमिंग दैट, बट B1 B2 में वही है, इफ यू आर कैरिंग 20 डॉक्यूमेंट्स और आपको अगर इट्स अ 40 सेकंड टू 1 मिनट Actually, 40 seconds. मैं सबको यही कहता हूँ कि 1 मिनट से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, 40 सेकंड का होता है। मैं अगर इफ दे आस्क यू टू गिव अ डॉक्यूमेंट, आप खुद ही लगा लो, आप अपने 20 फाइलों में 20 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ निकालते हो गए, 40 सेकंड खत्म, दे डोंट हैव एनीथिंग टू क्वेश्चन यू ऑन। तो हाँ, हेट्स डॉक्यूमेंट्स, इट्स गुड टू कैरी, बट just carry the right amount of documents, बस But ये उस नहीं time पे कि लगता है ना कि यार सब ले चलो, क्या हाँ, पता ये पूछ ले, need it. क्या पता वो पूछ ले, वो शेंगन, हाँ, तो वहाँ पे obviously- वहाँ सब कुछ होना एक चाहिए। और चीज जैसे अभी इसने बताया कि यूएस में ये भी डिफरेंट है, नॉट टूरिज्म एंड सोशल जो हम कर रहे हैं, बट स्टूडेंट वीजा के केस में, सो आई वेंट फॉर माय मास्टर्स टू कनाडा एज वेल। मन नहीं लगा था मेरा और मैं आ गया था वापस 1.5 महीने में टाइप्स। सो आई हैव स्टूडेंट वीजा एक्सपीरियंस विद कनाडा एज वेल। तो उस केस में यू डोंट हैव टू, मतलब फॉर मोस्ट अदर कंट्रीज इनफैक्ट जितना मुझे पता है एंड कनाडा स्पेसिफिकली, तुम्हें कुछ भी अपने फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को नहीं प्रूव करना होता है, यू प्रूव इट टू द इमिग्रेशन अथॉरिटी और द एम्बेसी और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। एंड यूएस के केस में क्या होता है कि तुम यूनिवर्सिटी को प्रूव करते हो जो डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई हाँ इन्होंने मुझे दिखा दिया है डॉक्यूमेंट्स, परहैप्स अ कॉपी इज शेयर्ड विद द इमिग्रेशन अथॉरिटी एज वेल, बट तुम पहले यूनिवर्सिटी को बताते हो जो बोल देता है कि भाई द record is clean, So for them- and you hand that over to the visa officer. For them the onus is on the university to make sure कि ये बच्चा जो आप बुला रहे हो जिसको, they are capable of, That's an sure, वो भी शेयर, मतलब वो हाँ, तुमने जो सेट ऑफ sure. डॉक्यूमेंट्स दिया है वो जाता तो होगा उनके पास, ऐसा Obviously. हाँ, सिर्फ They have- यूनिवर्सिटी पे नहीं रिलाई करते होंगे वो, और उनके but- पास ऑलरेडी आई थिंक इंफॉर्मेशन इनफ रहती है Right, कि right. टू हैव द डिसीजन, और वो लाइक मेरे से लिटरली 20 सेकंड बात हुई थी, दैट्स हाँ, इट, so 15 से 20 सेकंड। प्राइमरी क्वेश्चंस यार, अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो क्या रहे थे? आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्यों जा रहे हो, डू यू नो एनीवन देयर, ट्रू, सेम, हाउ लॉन्ग विल यू बी विजिटिंग फॉर, ठीक है, वेयर डू यू प्लान टू विजिट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर बंदा, देखो तुमने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी है DS 160 में, कि तुम कौन हो, तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये शायद तुम्हें पता होता है, बट फॉर मोस्ट पीपल जो एजेंट से भरवाते हैं ना, उनको तो ये होता है कि बस यूएस जाना है जी, यूएस में कहाँ जा रहे हो तुम्हें नहीं पता, एंड अगर तुम्हें नहीं पता ना तो 99% चांसेस ऑफ अ डिनायल। ऑब्वियसली I'd rather, मतलब 99 भी मैं यूं ही बोल रहा हूँ, शायद 100% chances of a denial. If you don't know where you are going to be going in the US, it's a big issue. True. So always know कि तुमने DS 160 में क्या लिखा है या तुम्हारे एजेंट ने क्या लिखा है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। तुम्हारे एजेंट ने लिख दिया न्यूयॉर्क, उसे न्यूयॉर्क ही पता है, तुम कहाँ जा रहे हो, फ्लोरिडा, कि भाई मैं यूनिवर्सल जाऊंगा। अरे फ्लोरिडा छोड़ यार, लोगों को यही नहीं पता होता मुझे कहाँ जाना है। मतलब there are so many people जिनको नहीं पता होता कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ। और फिर वो भी है ना, वहाँ पे क्या करोगे, तो उसमें हाँ, exactly. कुछ भी बोल दिया, ब्रॉडवे बोल दिया फेमस है, बट ब्रॉडवे पता ही नहीं कौन से शो होते हैं, कौन सी चीजें हैं, क्या ठीक है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम बताओ, बेसिक तो हाँ, मतलब even बहुत हाई लेवल पूछते हैं। इवन इफ, जैसे फॉर इंस्टेंस इसी केस में ब्रॉडवे मेंशन किया है, शायद वो कौन से शोज होते हैं मेंशन करना उतना नहीं, बट हाँ कि it is a landmark thing in New York, it is a thing to check out in New York, and it's something related to theater, and मुझे बताया गया है, मेरे दोस्तों ने बताया है कि हाँ it's worth checking out, so I'm going to be checking out. मतलब obviously इतना लंबा conversation नहीं होता, but you get my point. if you get the like gist of if you talk about something interesting या कुछ ऐसा ना, तो they might इससे क्रॉस क्वेश्चन हाँ, निकल सकते हैं, right. तो फिर देख लेंगे क्रॉस Right, क्वेश्चन। right. तुमने Broadway You should सुन know लिया, what you're going to be doing in the US. तुमने ब्रॉडवे सुन लिया, तुमने बोल दिया, अब उन्होंने वहां पूछ लिया कि हाँ भाई कौन सा शो,
हाँ किस या चीज फिर का show या ब्रॉडवे पहले कभी अटेंड किया हाँ ब्रॉडवे है क्या? नहीं या- या तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों है ब्रॉडवे थिएटर राइट ब्रॉडवे स्टेट आप तो क्या हाँ तुमने इंडिया में कभी एनएसडी का देखा है तो तो ये हो गया एंड इसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे हाउ लॉन्ग यू गाइस हैव बीन मैरिड ठीक अच्छा। है हाउ लॉन्ग हैव यू गाइस बीन मैरिड एंड बहुत ही फनी स्टोरी है इसके अराउंड मेरी शादी हुई थी 11 सितंबर 2021 को एंड मेरे मुंह से 11 सितंबर निकलता है वहां मैं आई डिड नॉट से कि इतना टाइम हो गया मैंने डेट बोली फिर मुझे याद आया भाई 9/11 शायद यहाँ मेंशन नहीं करना चाहिए था Probably ये risky है भाई। probably the worst place to utter the word. यार 9/11 नहीं बोलना चाहिए था anyhow तो उसके बाद क्वेश्चन थे कि डिड यू फाइनेंस these trips yourself all the places that you have been to किसी और ने पैसा दिया था या तुमने खुद दिया था तो आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव कि मैंने खुद ही दिया था एंड फिर मेरी वाइफ से भी एग्जैक्ट सेम ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैव यू एवर बीन आउटसाइड इंडिया बाकी क्वेश्चंस उससे ज्यादा नहीं पूछे थे एक्सेप्ट कि तुम क्या करते हो द क्वेश्चंस लाइक कि तुम क्या करने वाले हो यूएस में या कितने दिन जाओगे वो तो कॉमन ही थे तो वो सिर्फ मुझसे पूछ लिया था तो इसमें इससे एक चीज याद आई कि मेरे बगल में एक बंदा दे रहा था तो उसका ऐसा था उसके खुद की आईटीआर या फंड्स नहीं थे तो उसने अपफ्रंट बोला कि भाई माय डैड विल बी फंडिंग इट माय डैड हैज अ 5 करोड़ कंपनी रनिंग ये उसके आई हैव द इनफ एवरीथिंग एंड ये दैट्स इट उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उस चीज पे तो सिंपल था यही भी कई बार लगता है ना हम खुद ही बोलें या कुछ रहे बट जो है वो बता दो जो पॉइंट आप कह रहे थे हाँ so but in that case as well I would have perhaps answered it like कि my dad would be financing it ठीक है मैं डैड के आगे के फाइनेंशियल शायद इतना शेयर नहीं करता मैं कहाँ बात हो जाती है then every visa officer is a bit different as well True. उनका वो उस टाइम पे क्या टेम्परामेंट है Mood है, and ये भी मैटर करता है हैव यू बीन ओवरशेयरिंग ऑन वन ऑफ द क्वेश्चंस या तुमने 10 के 10 पे ओवरशेयर किया है तो वो भी ऑब्वियसली मैटर करता है सो बट थंब रूल मेरे हिसाब से ये रहता है कि ओवरशेयर ना करो जितना पूछा जाए उतना बताओ So tell me like your top 5 favorite countries या top 3 individually जहाँ पे आप लोग गए हो and you will recommend people to go. श्रेय अब ऐसा है कि मैं 10 गया हूँ आज अच्छा। तक तो उसमें से अगर आई हैव टू चूज 3 वन वुड बी सिंगापुर Bye. वन ऑफ द रीजंस इज सिंगापुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना दैट इज क्लास अपार्ट मतलब ही वेंट बिफोर मी सो ही टोल्ड मी कि सिंगापुर में कैसे है क्या नहीं एंड इट वाज एक्चुअली दिस मेरा होटल था इट वाज अबव अ मेट्रो स्टेशन मैं नीचे जा रहा हूँ इन सिंगापुर इट वाजंट द केस कि मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं वॉक करना पड़ रहा है टू फाइंड द नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि यहाँ से बस चेंज करनी है मेट्रो चेंज करनी है एंड एवरीथिंग इट ऑल डिपेंडेंट ऑन योर आइटनरी बट ऐसा नहीं था कि मैं चल के जाने जैसे वी वेंट टू दुबई में मुझे दिन के 20-20 हज़ार स्टेप्स चल रहा था मैं सिंगापुर में दैट वाजंट द केस इट वाज वेरी एक्सेसिबल एवरीथिंग वाज एक्सेसिबल एंड ऑब्वियसली ब्यूटीफुल कंट्री ग्रीन कवर काफ़ी अच्छा है दे हैव ब्लेंडेड द मॉडर्न लाइक high rises and nature very well. So Singapore was one. Second was Kazakhstan. Beautiful country. And quite popular also. Last we, year. went there together. we went there together. 1 week after his marriage. नहीं that wasn't That was Kazakhstan. एक हफ्ते बाद तो कजाकिस्तान वाले में बीवियां साथ में नहीं So it was हम लोग गए थे दोस्त गए थे So तीन हम दोस्त दो गए and थे। another friend of ours जो 15 साल से ही साथ में है so we 3 went and beautiful country. बहुत साफ वेलकमिंग कंट्री एंड बस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नेचर वगैरह था वेरी डिफरेंट फ्रॉम मतलब जैसे सिंगापुर हांगकॉन्ग वगैरह इस टाइप से एंड देन हांगकॉन्ग जस्ट फॉर द रीजन कि मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था मेरे साथ Okay. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग आउटसाइड तो एज अ लाइक पूरी फैमिली वी ट्रैवल्ड हैड फन एंड आई सॉ माय पेरेंट्स हैविंग दैट जॉय ऑफ कि हाँ बाहर घुमाने लेके आए हैं बढ़िया न्यू ईयर पे गए थे हम सो वी रीच्ड देयर ऑन द 31st तो शाम को वो फायरवर्क्स अपने इंडिया में वो न्यू ईयर वाला फायरवर्क्स वाला नहीं है तो वहाँ वो देखे इट वाज फॉर देम एवरीथिंग वाज सच अ न्यू एक्सपीरियंस तो वो एक मेमोरी जो है मतलब इट माइट हांगकांग मतलब फॉर सम पीपल इट माइट नॉट बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट मेरे लिए जो मेमोरी बन गई हांगकांग की Core memory. तो वो कोर मेमोरी है कि हाँ मेरे पेरेंट्स का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और उन्होंने वहाँ बढ़िया फन किया तो फॉर मी दीज थ्री एंड होपफुली कोई और आगे ऐड होता तो एज एन वी गो अलोंग For you. So ऐसे यार मतलब picking favorites is not gonna be easy very honestly. Like top. ठीक है तो यहाँ पे मतलब वैसे मैं बताऊं तो घूमने का कीड़ा कहाँ से आया डैड को भी बहुत शौक है अच्छा। इनफैक्ट डैड और मैं ओवरसीज भी अकेले भी गए हैं 10-20 दिन के ट्रिप्स में लाइक मी एंड माय डैड एंड नो वन एल्स वी बीन टू टर्की मैं पापा के साथ मैं टर्की गया हूँ फिलीपींस गया हूँ एंड ताइवान गया हूँ
तो ये 3 कंट्रीज प्राइमरीली जस्ट बिकॉज मैं पापा के साथ गया था एंड आई वेंट टू जापान विद माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर, वो अच्छा था। बट हाँ, ऑन अ पर्सनल लेवल अगर मुझे कुछ कंट्रीज बताने हैं तो कजाकिस्तान ब्यूटीफुल, सस्ता है, सुंदर है, 3 घंटे की फ्लाइट है एंड बहुत ही बढ़िया है यार। मतलब वी ओनली वेंट टू अलमाटी, मतलब आई कांट से इट फॉर द होल कंट्री, बट अलमाटी एंड द सराउंडिंग रीजन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वैसे तो हम पीते नहीं हैं, बट देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड शिम्बुलाक इन कजाकिस्तान, स्की रिजॉर्ट है, स्की स्लोप बना हुआ है, बहुत सुंदर। मतलब स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग तुम्हें वहां देता है। आई हैवंट बीन देयर बट दिस इज नॉट समथिंग आई एम अकेला बोल रहा हूँ, सो बहुत लोग बोल रहे हैं। I have also seen videos and बढ़िया ski resorts बने हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं शिम्बुलाक इज वेरी नाइस। और शिम्बुलाक जाना है ना तुम्हें अलमाटी से, भाई 19 रुपए की बस है, इट्स राइट आउटसाइड द सिटी। 19 रुपए 1 hour bus ride for 19 rupees फ्लैट, Nice. क्रेजी गुड बस, मतलब अच्छी सुंदर AC bus. How's the hotel prices? होटल प्राइसेस भी डिसेंट है, ऑल्दो वी स्टेड इन हॉस्टल्स। हम तीनों गए थे, ठीक है, 3 लोग गए थे और हमें हॉस्टल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वी वांटेड द हॉस्टल एक्सपीरियंस। तो बट ज्यादा महंगे नहीं है, मतलब यू कैन गेट अ डिसेंट होटल फॉर मे बी 3 to 5,000 a night। Our flights? Probably the cores are in the same range, like 5 to 6. नो होटल था जैसे आई बिलीव वो 5-6 हजार रुपए टाइप्स पर नाइट था, एटलीस्ट व्हेन वी वेंट एंड दिस वाज Ski resorts usually the महंगे होते हैं ना? all the ski resort में I think Shimbulak does have a place to stay as well, but Shimbulak लोग as मतलब They don't stay there. people मतलब don't वो usually जाते stay हैं, वहाँ पे। right. हाँ, so it's right outside the city, people stay in the city and पूरा दिन वहाँ बिता के आते हैं। cottages जहाँ पे आप रुक सकते हो, but it's Nice. primarily कि आप city से जाओ, City से you जाते take a हैं। 1 day pass or a 2 day pass, तो आप 2 दिन चले जाओ वहाँ पे Nice. and you skiing सीखनी है सीख लो, वैसे ही आपको टॉप तक जाना है तो आप चले So जाओ। वैसे हम बीते नहीं है, बट वही 6 महीने साल में एक आध हो जाता है ना, जैसे भाई की शादी आ गई या कुछ आ गया तो वैसे वाला सीन। तो शिम्बुलाक में हम मतलब शिम्बुलाक के जस्ट पीछे जहाँ पे स्की स्लोप है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है जिससे आप स्की लिफ्ट से जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड बोगदानोविच ग्लेशियर, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है। तो वहाँ पे ऊपर बार बनाया हुआ है उन्होंने, तो वहाँ बैठ के एक ड्रिंक लिया हमसे, कहा तो जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस की हाँ ठीक है यार। और सो कजाकिस्तान वाज प्रीटी नाइस, वी स्टेड इन विलेजेस एज वेल इन कजाकिस्तान फॉर इन अ विलेज फॉर अ नाइट, ठीक है। एंड अच्छा एक्सपीरियंस है काफी। खाने का इशू थोड़ा होता है, मतलब वी आर वेजिटेरियंस, सो वी हैड टू कैरी पोहास एंड सो कजाकिस्तान, वियतनाम आई बीन देयर ट्वाइस, सस्ता एंड टिकाऊ, उतना सस्ता नहीं है जितना पहली बार मैं आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016, दोस्तों के साथ गया था, हॉस्टल में ठहरे थे। आई स्टिल रिमेंबर हनोई में हमारा हॉस्टल था, $5 a night, बढ़िया सुंदर अच्छा हॉस्टल, फ्री ब्रेकफास्ट एंड 5 बजे के बाद अगर बियर पीते हो तो अनलिमिटेड बियर, मतलब अनलिमिटेड एज इन वो अपने वो आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, Bucket. जो भी 3 बर्ट वो स्टील का होता है ना जिसमें रहता है केक्स होते हैं, तो उसमें 3-4 केक्स वो शाम को लेके आते हैं, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक अनलिमिटेड है वो, ठीक है। Nice. तो मतलब $5 and $5 back then was what I think less than 350 rupees, 70 रुपए के आसपास होता था आई थिंक। And how are the people? people are nice. लैंग्वेज का इशू थोड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि तुम कन्वर्सेशन नहीं करवाते हैं, गूगल ट्रांसलेट तो होता ही होता है। तो कजाकिस्तान में इनफैक्ट लैंग्वेज इज अ बिगर इशू, वियतनाम में नॉट एज मच, इंग्लिश के बोर्ड्स होते हैं और वो सब रहता है। तो 2016 में पहली बार दोस्तों के साथ गया था, चीप नाइस। अभी रिसेंटली जस्ट अबाउट लेस देन 3 months ago मैं फैमिली के साथ गया था, मी, माय वाइफ, माय ब्रदर एंड हिज वाइफ एंड बच्चे थे, तो प्रीटी नाइस। मतलब बहुत उन्होंने फैमिली के लिए अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बना दी हैं, कई लोगों ने वो गोल्डन ब्रिज एंड वो सब चीज़ें देखी होंगी, अच्छी जगह है। सो वियतनाम एंड यूएस अच्छा है, बट आउटसाइड ऑफ सिटीज़, नेशनल पार्क अच्छे हैं, सिटीज़ नॉट एज मच, ठीक है। कनाडा भी सिटीज़, कनाडा की सिटीज़ पहले ठीक थे जब मैं गया था, एटलीस्ट 2019, अब लेकिन सिटीज़ के हालात कहते हैं बुरे हैं, बट आउटसाइड ऑफ सिटीज़ कनाडा इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। नायगा फॉल्स आर नाइस एंड बैंफ नेशनल पार्क है, बहुत सुंदर है। सो दैट्स अबाउट इट आई थिंक। मेरा भी जैसे इफ आई टच ऑन वन थिंग, ही सेड यूएस में आउटसाइड सिटीज अच्छा है। कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू मिस अबाउट यूएस, मैं तो 2 साल रह के आया वहाँ पे, मुझे लाइक यार वो वहाँ का वो नेशनल पार्क और वो कैंपिंग वाला कल्चर बहुत अच्छा, मतलब यू हैव हर सिटी, ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन द यूएस हैज एक्सेस टू लाइक 2-4 घंटे में you reach somewhere where you can like camp with your family and everything, or camp with You your can friends and stay for everything. multiple days. You can stay for multiple days camp. So the only Events bad वगैरह thing about US is public transport is
काइंड ऑफ You नॉन are एग्जिस्टेंट इतना शॉर्ट नहीं है. काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट एंड हम वैसे लोग हैं जो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट जैसे ही है यार. मैं यूएस गया था तो मुझे एलए के बाद सैन डिएगो जाना था, ठीक है, क्योंकि सैन डिएगो लोगों ने बताया कि सैन डिएगो इज वन ऑफ दोज सिटीज जो एक्चुअली तुम्हें पसंद आएगा. लाइक वेगस लोगों को बहुत पसंद आता है. आई डिड नॉट लाइक इट एज मच. एक बार चेकलिस्ट पे डालने के लिए इट्स फाइन, बट मुझे इतना कुछ मजा नहीं आया. तो सैन डिएगो लोगों ने बहुत उन्हें बताया कि यार वो सुंदर है, वो तुम्हें शहर भी पसंद आएगा. मतलब कुछ जगह होती थी जैसे सैंटा मोनिका एंड एलए पसंद भी आया, बट ओवरऑल सिटीज ऐसे बहुत अच्छे नहीं लगे. मतलब देयर आर अ फ्यू क्रेजी स्टोरीज एज वेल अबाउट द यूएस. एनी हाउ, तो सैन डिएगो जाना था, एमट्रैक करा लिया, वहाँ की जो ट्रेन होती है. भाई साहब ट्रेन ही कैंसिल हो गई, बट ठीक है, अच्छा हुआ. मैंने उसकी जगह हवाई का प्लान बना लिया एंड हवाई वाज वेरी वेरी नाइस. तो बट नॉन एग्जिस्टेंट ही है वहाँ पे, मतलब जो है वो अच्छा नहीं है. दूसरा हमारा एज यू मेंशन वेजिटेरियन है. तो कजाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा था. वी आल्सो वेंट टू चाइना लास्ट ईयर. तो हम दोनों और चाइना भी इसका मैं भाई और मेरा भाई है. तो हम गए थे वहाँ पे. तो हमें था कि खाने की थोड़ा वी कैरिड ऑल दोस फूड्स एंड एवरीथिंग. एंड आई कैन वेरी मच से कि वी आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव राजमा चावल ऑन टॉप ऑफ ग्रेट Not ऑफ the चाइना. not the only ones, not the very few that might और among the very few. तो हाँ मतलब ये चीज़ दैट नेवर डिटर्ड अस कि हाँ यार चलो खाने की प्रॉब्लम होगी. कि एक तो इंडियंस हर जगह पहुंच चुके हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह हैं. चाइना में भी यार पता नहीं, आई डोंट नो, लोग कहते हैं मतलब एटलीस्ट वी वेंट टू शंघाई, बीजिंग एंड शेंजन. तो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यार, मिल जाता है खाना भाई, सब जगह मिल जाता है. ब्रेकफास्ट का इशू होता है सबसे बड़ा. लंच एंड डिनर का कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट का क्यों होता है? क्योंकि भाई 11-12 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुलते नहीं है. पर ये चीज होती है, बाहर जाते ही इंडियन खाने का मन करने लगता है. काफी एक दो दिन बाद वेजिटेरियंस हो तो और ज्यादा भाई, और ज्यादा भाई. मतलब माय गो टू क्विजीन्स आर कि इंडियन भाई वेजिटेरियन मिल ही जाएगा, ठीक है. मैं नहीं कहता कि बाकी क्विजीन्स में मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो मजा मुझे तो नहीं आता भाई, ठीक है. मतलब लोग कह रहे थे भाई बाहर करने क्या जा रहे हो भाई, नहीं और बहुत चीजें हैं करने के लिए, मैं खाना इंडियन खा लूंगा. अब एक वेजिटेरियन होता है जो अंडा भी नहीं खाता, हम वो हैं. तो जैसे हम बाली गए, बाली में देयर वेरी फेमस डिश एग फ्राइड राइस, ठीक है. उनका फ्राइड राइस कंटेन्स एग्स, ठीक है. तो वी कांट हैव दैट फ्राइड राइस क्योंकि अंडा है, हम नहीं खाते. तो वहाँ पे भी बट वैसे वाले हैं कि डेजर्ट्स में अंडा है तो खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब इतना मतलब नेगेटिव इतना बड़ा नहीं कर सकते. तो मतलब वी हैव मैनेज्ड इंडिया के बाहर भी आराम से एज सच. और मतलब इट हेल्प्स कि इंडियंस एज अ कम्युनिटी हैव रीच्ड प्रीटी मच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. या फिर इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि इट हैज रीच्ड एवरी कॉर्नर. तो सब लोग खाते हैं बढ़िया. लाइक मैं स्विट्जरलैंड में था तब एकदम से मतलब लेके गए थे सारा राजमा छोले सारी चीजें, बट फिर मन गया फ्रेश खाए ना रेस्टोरेंट में जाके. इतना महंगा, स्विट्जरलैंड महंगा ही बहुत है, बहुत ही महंगा. उसमें था 1000 रुपए की दाल. somebody added an next recently कहता है $25 की बिरयानी, 25 यूरो की बिरयानी थी. एंड आल्सो हाँ मतलब स्विस फ्रैंक्स थे कुछ 15 फ्रैंक्स का एक रोटी और ऐसा आलू पराठा. अरे रोटी तो ऊपर सबसे बड़ा किलर होता है, पता है मतलब कि भाई अच्छी भी नहीं आती. 200-300 की रोटी मुझे कभी समझ नहीं आता. मतलब ठीक है, अब इंडिया में भी इनफैक्ट हम किसी 5 स्टार जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो भाई शेफ की करामात है, उसने बहुत कुछ खतरनाक कर दिया है कि भाई दाल 1000 रुपए की होगी है, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड. बड़ी रोटी भाई, रोटी 300 की कैसे होती है, क्या किया होगा ऐसा? मतलब हाउ डिफरेंट कैन इट? चलो हमारे घरों में तब ठीक है, उनके और एक्सपेंसेस हैं, उनकी एम्बिशन भी है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा की, वो ठीक है. बट वो सारा रोटी में से निकलता है. हजम सी नहीं होती बात कि भाई 300 रुपए की रोटी क्या होगा इसमें. और फिर वो आते हैं सर्वर्स आते हैं, सर और ब्रेड्स और ब्रेड्स हाँ और ब्रेड्स. So भाई being the middle class people that we are, being the middle class people that we are, मैं बताता हूँ मतलब स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स पे क्या होता है ना भाई, काट देना अगर ये चीज अच्छी है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है जी, प्लेन रोटी 30 रुपए की है, लच्छा पराठा 50 रुपए का है, नान 60 रुपए का, so on and so forth. लेकिन 5 स्टार्स में यूजुअली सेम प्राइस होते हैं. तो वहाँ पे प्लेन रोटी खाने का मन नहीं करता भाई, जहाँ 2 प्लेन रोटी है उसकी जगह एक लच्छा पराठे में हो जाएगा. फिर वो अच्छा भी नहीं आता, वो भी एक दिक्कत है. फिर मंगा लो. वो तो यार हमारा सिंपल फंडामेंटल क्या है, मतलब वो कि हमारा रेस्टोरेंट्स के मामले में क्या है कि अगर अच्छा निकल गया तो ठीक है, वील कम अगेन. अगर नहीं निकला ना, वील जस्ट लीव एंड वील नॉट विजिट देम अगेन. हमारा वो नहीं है कि रैंट करेंगे कहीं पे जाके या उनको जाके बोलेंगे तुमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है यार अगली बार नहीं आएंगे, नहीं अच्छा लगा कहीं और. देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर. वो मतलब बड़ों ने यूं ही तो नहीं बनाई ना, ऊंची दुकान फीका पकवान फॉर अ रीजन बनी है. लिटरल है वो चीज. नाइस. एनी वाइल्ड स्टोरीज दैट यू हैव? कुछ भी एक स्टोरी इफ यू वुड लाइक टू शेयर.
बहुत ज्यादा Top of the तो नहीं mind. याद आ रही। यूएस का जैसे मैंने शेयर किया ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला इशू, तो एलए में थे हम एंड माय फ्रेंड्स एडवाइस। एलए में मतलब देयर आर शेडी नेबरहुड्स, जैसे डाउनटाउन तो बहुत ही क्रेजी है। अभी डाउनटाउन एलए में बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। तो एलए डाउनटाउन इज क्रेजी, ठीक है। तो मैं हॉलीवुड में रुका हुआ था एंड हॉलीवुड में भी होमलेस का इशू एंड ड्रग अब्यूज का इशू है वहाँ पे। मतलब अ लॉट ऑफ होमलेस यू विल सी वॉकिंग अराउंड, जिनको देख के पता चलता है कि भाई ड्रग्स पे हैं एंड वो सब चीज़ें। तो इट इज़ अ बिट शेडी बट अ टूरिस्टी नेबरहुड। तो आई स्टेड इन अ गुड होटल वहाँ पे एंड आई वाज एडवाइज्ड कि भैया वहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेना, एलए में मत लेना, ठीक है। तो आई स्टेड देयर फॉर लाइक 5 days। 3 दिन तो मैंने नहीं लिया, लास्ट 2 दिन मेरे थे यूनिवर्सल स्टूडियोज के। एंड मैं हॉलीवुड में रह रहा हूँ, यूनिवर्सल स्टूडियोज भी वहीं है। मेरे होटल से थोड़ा दूर मेट्रो स्टेशन था एंड 2 स्टेशन दूर यूनिवर्सल स्टूडियोज था। मेट्रो की टिकट आई थिंक $3 थी, ऊबर ले रही थी $37। तो आई वाज लाइक यार 1/12 द कॉस्ट में पहुंच रहा हूँ, या 1/6 एटलीस्ट। चलो 2 लोग थे हम, कि भाई क्या फर्क पड़ेगा, 2 मेट्रो स्टेशन तो है, क्या ही हो जाएगा इसमें, चलता हूँ। सो आई वेंट अगेंस्ट माय फ्रेंड्स सजेशन कि भाई छोड़ो कोई नहीं, मेट्रो लेते हैं। एंड पता चल गया भाई क्यों एडवाइस किया था मत लेना। क्या हुआ? भाई साहब इतनी बदबूदार मेट्रो है उनकी। मतलब दैट इज वन थिंग जो हमारा वो परसेप्शन रहता है ना कि भाई यूएस में तो एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड सब वो। तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि भाई इंडिया बहुत आगे है ये है, बट दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। इंडिया में बहुत गंदगी है, बहुत जगह में बहुत गंदगी है, बहुत जगह बहुत साफ भी है, ठीक है। मेट्रो तो सामने। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन जनरल एंड मेट्रो, एलए मेट्रो के साथ मैं स्पेसिफिकली कंपेयर कर सकता हूँ भाई। उससे गंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये मैं न्यूयॉर्क मेट्रो के बारे में तो सुना है, एलए Same, मेट्रो परहैप्स उससे भी बुरी है। देखो पता क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ लो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। न्यूयॉर्क में फिर भी बड़े लोग भी मेट्रो लेते हैं। एलए में क्या है, द होमलेस एंड द पुअर टेक बहुत बड़ा gap है। ठीक है। हाँ, द होमलेस एंड द पुअर टेक मेट्रो, द रिच डोंट। इट्स अ सिटी बिल्ट फॉर व्हीकल्स, लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क में तो एलए से अमीर भी तो बहुत अमीर है ना फिर वो। न्यूयॉर्क में फोकस ही नहीं रहा है कभी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है। सो हाँ, इतनी बदबूदार मेट्रो, बट चलो ये तो हो गया जस्ट रेगुलर कमेंट ऑन की कैसा है। जो क्रेजी पार्ट है उसके बाद आता है। क्रेजी पार्ट के हाथ है भाई, मेट्रो रास्ते में रुक गई, इमरजेंसी इवैक हुआ और मेट्रो की साइड में ऐसे चल चल के बाहर आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। सो डिसाइड कर लिया हाँ भाई दोबारा नहीं देनी है डिज्नी, और उसके टाइम पर आपको जल्दी पहुंच के पूरा कवर करना है, टाइम नहीं वापस आते हुआ था, ये शाम को हुआ था, बट यही हाँ क्रेजी एक्सपीरियंस था ये काफी ज्यादा। मेरे साथ तो पेरिस में हुआ था, हमारी मेट्रो खराब हो गई थी और वो फ्रेंच में बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग कोई रिएक्ट भी नहीं करता, एक तो वहां पे सबको कैजुअल एकदम लेके एक स्टॉप पे पहुंचे, वही डिज्नीलैंड आ रहे थे हम लोग। स्टॉप पे पहुंचे, पूरी ट्रेन उतर गई बाहर। तब भाई क्या हो रहा है, हम भी उतरे, हम भी उतरे। Moral of the story: don't take metros to these parks. नहीं, क्योंकि ये दूर होते हैं ना पार्क्स, तो उसके लिए अलग कोई नॉट जस्ट दीस पार्क्स, इन जनरल भी यार। मतलब देखो कुछ लोग ना अभी कहने लग गए हैं कि भाई पेरिस तो इतना खराब हो गया है, ये तो इतना खराब हो गया है। सो मतलब आई डोंट थिंक कभी भी देख ये लोग ऐसे हैं, ये वो लोग हैं शायद जो दिल्ली यमुना के साइड में कभी वॉक नहीं किए हैं, ठीक है। वो देखेंगे तो भाई दिल्ली उससे भी ज्यादा गंदा है। दैट सेड, 2 चीजें मुझे ठीक लगती हैं, दैट यस दीस सिटीज आर गोइंग डाउन अ बिट, इनमें प्रॉब्लम्स पहले के कंपैरिजन में बड़ी है, गंदगी भी बड़ी है। एंड दूसरा, इन सिटीज में जो तुम सुनते हो ना दैट आर गोइंग डाउन, इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवॉइड हो सकती है तो करो, अगर अवॉइड हो सकती है तो करो। The same is not true for the Oriental countries. East भाई, मतलब मैं तो जनरली भी बोलता हूँ कि भाई लोग बोलते हैं कि लुक वेस्ट, कि भाई यूएस कैसा बढ़िया कंट्री है, कनाडा कैसा बढ़िया कंट्री है। भाई जापान, चाइना, कोरिया देखो यार, देखी गलत साइड देखो तुम। काफी। हम चाइना में जब थे तो हम वैसे ही जा रहे हैं, सिटी टू सिटी मेट्रो में जा रहे हैं, तो हमने वैसे ही खोल के देखा कि मेट्रो नेटवर्क कैसा है। चाइना क्रेजी मेट्रो नेटवर्क। तो हम वहाँ देख रहे कि बीजिंग का मेट्रो नेटवर्क वाज 854 स्क्वायर किलोमीटर्स। किलोमीटर मतलब लेंथ ही क्या था, लेंथ 854। तो हम देखेंगे कि इंडिया का कंबाइंड ऑल सिटीज नहीं पहुंचा था, प्रोजेक्टेड है, बट इट इज बिलो बीजिंग राइट नाउ। इट इज प्रोजेक्टेड टू जस्ट सरपास बीजिंग, और मे बी इट हैज जस्ट सरपास बीजिंग, और इट इज नेक टू नेक विद जस्ट वन सिटी ऑफ चाइना। सो मतलब देयर इज नो हार्म इन लुकिंग ईस्ट, बिकॉज दे हैव आल्सो डन सम थिंग्स व्हिच आर रियली ग्रेट। मतलब take the best of both worlds, don't be like just look west। तो हमारा वो सोच है, but then again everybody has their own like कि एक वो जाता है ना, बहुत प्री बिल्ड चल रहा दिमाग में कि they US
1900s से चल रहा है, तो एक लेगेसी हो जाती है. चेंज होता रहता है 50 साल में, उसमें वो आता रहता है. नहीं मैं तो So wrapping up this section नहीं also. बट बिफोर वी रैप अप, सो तुम्हारा भी तो बताओ, मतलब कुछ बढ़िया कहाँ गए हो. एंड यूरोप इज दैट वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ हम लोग नहीं गए हैं. मतलब मैं द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू यूरोप इज टर्की, and I had a layover in Paris on my way to Canada. मेरे layover I've eaten So- croissants at layovers airport पे. But So tell us more So about it. I'll tell you. वो क्योंकि जैसे लोग बोल रहे थे कि पेरिस के लिए भी एक मिसकंसेप्शन है कि काफी गंदगी है, वो चोर है, ये सब लोग रहते हैं काफी मेट्रोस पे और सब चीजें, वो सब हैं आई थिंक. There are बट वो हर neighborhoods जगह है, actually. वो स्पेसिफिक हाँ. भाई. बट पेरिस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब आई तो फेल इन लव विद इट. इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ दे शो इट इन नेटफ्लिक्स मूवीज. Same. इट इज अ इमेजिनरी वर्ल्ड एंड बहुत सुंदर है. पीपल आर सो वेल ड्रेस्ड, दे आर सो गुड लुकिंग, एवरीबॉडी इज सो गुड लुकिंग. मतलब लिटरली ये चीज है. मतलब आई थिंक एलिटेस्ट ऑफ द जीन्स है वहाँ पे लोगों में, है ना. एवरीबॉडी इज लीन, एवरीबॉडी इज फिट. क्योंकि बट यूएस साइड फिर भी इतना नहीं है, बिकॉज वो चीज है. उनका थोड़ा यूरोप में है थोड़ा वॉकिंग कल्चर ना, तो कहते भी हैं कि बहुत because they walking है. walk Plus and dressing sense. foods are good. एक्चुअल में ड्रेसिंग सेंस इज ऑन अ क्रेजी लेवल. लाइक पेरिस में एक स्ट्रीट है, शॉन्जेलीजे नाम है उसका स्ट्रीट Yeah, का, I've heard of it. है ना, जहाँ पे एलवी का वो सब सिस्टम है. भाई वहाँ तो मेरा दिमाग खराब हो गया था. मतलब इट्स लाइक अ वॉकिंग फैशन स्ट्रीट. मतलब और वहाँ पे अगेन इट्स नॉट लाइक बसट लग्जरी कि एकदम अपने यहाँ पे ऐसा पहन के पूरा बाल में ये ऊपर क्वाइट लग्जरी. कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे है ना क्रेजी. एक तो एवरीवन वेयर्स ओनली ब्लैक और ब्राउन, उसके अलावा कोई कलर ही नहीं. बट वो इतना बढ़िया से कैरी करते हैं. शायद यही कॉमन है हमारे, हम भी ब्लूज एंड ब्लैक्स ही पहनते हैं ज्यादा. प्लस वाइन कल्चर जनरली बहुत अच्छा है. पर ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, जैसे अपने यहाँ पे ना ये चीज ले ली लोगों ने कि वाइन हेल्दी होती है. बट वाइन हेल्दी क्यों होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट ना कहाँ से आया है, ये मेरे को रियलाइज हुआ आज, क्योंकि वो लोग 12 बजे बढ़िया अपना वाइन ले रहे हैं ना, दोपहर में, दिन स्टार्ट हुआ. बट वाइन के साथ में इतना बड़ा सैलेड बोल है उनका, साथ में इतना बड़ा बस है, तो वो लेके पूरा एक बैलेंस मील है. हमारे यहाँ पे वो नहीं है ना, हमारे यहाँ पे पूरी उसके साथ कबाब्स हैं, फ्राइड वो है, कुछ फ्राइड होगा. तो आई लव द कल्चर. फिर वी हैव दिस वन थिंग wherever we go, तो वी गो टू लोकल बार्स एंड लोकल वो चीजें जो एक्सप्लोर करते हैं, लोकल चीजें जो वहाँ के पॉपुलर कैफे स्पेशली. तो वहाँ से बहुत कुछ कल्चर समझ में आता है, जाने मिलता है कि जहाँ पे यू नो लाइक लोग पूरा दिन निपटाने के बाद अपना माइंड ऑफ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो दैट ऑल एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. ऑब्वियसली आईफिल टावर के आसपास वो सब गैंग्स लोग रहते हैं, तो उनसे दूर ही रहो. कोई भी आपके आसपास आ रहा है. आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. एलए में भी यार एग्जैक्टली ऐसे ही था. सेंटा मोनिका जाओ भाई, बहुत ही बढ़िया लगता है. सेंटा मोनिका के पास दिस ओपन स्ट्रीट मार्केट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो भी बहुत सुंदर था. तो देयर आर नेबरहुड्स दैट यू शुड गो एंड दैट यू शुड नॉट गो. Same, वही. ओवरऑल ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस इज ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. मेरा एलए का ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज कि हाँ ये नेबरहुड्स अच्छी हैं बट ज्यादातर गंदा है. तुम्हारा एग्जैक्ट अपोजिट है, बट ये तो हमेशा ट्रू होता है यार. देयर आर नेबरहुड्स. दिल्ली में भी जैसे हमने बात की, Exactly. सेम. अगर मेरा ऐसा था कि भाई अगर मेरा एच भी ना होता है, मूविंग टू सैन फ्रांसिस्को, तो जो दोस्त वहाँ रह रहे थे, मैंने सोचा भाई घर खाने ना, कहते भाई SF के बाहर गई हुई. रहना ना, तो देयर आर टूल्स. तो वो ऑनलाइन टूल क्या बताते हैं कि किस स्ट्रीट में क्या क्राइम रेट है. हाँ. सो देयर इज क्राइम रेट बाय स्ट्रीट एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपके इस गली में क्राइम है तो इस गली में रेंट कम है, इसके बैक साइड ऑफ गली जो जस्ट बैक है उसमें कुछ क्राइम नहीं और वहाँ ठीक है, तो वहाँ गलियां बनी कि भाई क्राइम इसी गली में होगा. So but SF in general, जैसे मैं I stayed in a suburb of SF. मेरा दोस्त रहता है क्या था यार उसकी जगह का नाम, अब तो वो सैन होजे रहता है, पहले कहाँ था देखो I don't remember. चलो जो भी Sunnyvale. सनीवेल, यस सनीवेल रहता था. सनीवेल तो बाहर है. हाँ वही कह रहा हूँ ना, suburb of SF ही बोलते हैं, मतलब बिल्कुल. 40 minutes from the city I think, ऐसा कुछ. तो बहुत सुंदर जगह है यार सनीवेल रहने के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगा. बट सिटी में वही मेरे दोस्त बता रहे कि भाई दूसरा दोस्त हमारा एक जो सियाटल रहता है वो आया था पिछले वीकेंड, उसकी गाड़ी में से लैपटॉप चोरी हो गया. एंड यू सी बैनर्स एवरीवेयर इन SF कि भाई गाड़ी में कुछ छोड़ के मत जाना. जैसा बैनर एवरीवेयर इन SF, ठीक है. तो सिटीज का उन कुछ सिटीज का ऐसा हो रखा है कि भाई सिटी में मत रहो, SF में कहाँ रहना है तो SF के बाहर कहीं भी. तो राइट आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स है लोगों. दिस इज इक्विवेलेंट टू टोरंटो का वो पुलिस चीफ सेइंग कि अपनी गाड़ी की चाबियां दरवाजे के पास रखो क्योंकि चोरी होगी तो तुम बच जाओगे, वो चाबी वहीं से उठा के ले जाएंगे. तो एटलीस्ट दे विल नॉट हार्म यू व्हाइल एंटरिंग द होम. SF में ये चीज समझ में नहीं आ रही क्योंकि पूरा सिलिकॉन वैली वहाँ इतने बिलियंस ऑफ डॉलर घूम रहे हैं यार, क्राइम रेट भी इतना. यार, City is bad, the suburbs are good अभी भी जितना मुझे पता है. यार, Unless something has changed in the last 2 years or so. मैं आके बताऊंगा. But overall Europe is very beautiful I think.
एक्चुअल में बहुत सुंदर है, बहुत अलग है। कॉशियस तो यार हर किसी को रहना ही चाहिए कहीं भी जा रहे हो तो, मतलब Plus, यार public cautious transport- का ऐसा है कि कजाकिस्तान गए थे हमारे साथ इतना नहीं सीन हुआ। वी मेट अ फ्यू इंडियंस जिनके साथ वो ये आजकल इन कंट्रीज में ना कैब स्कैम टैक्सी स्कैम के नाम से चल रहा है कि आप वो उबर या जो भी वहाँ पे 10 जेंडेक्स है वहाँ पे कि उससे नहीं बुक किया, वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे टैक्सी वाला मिला, कहता है इतने में ले जाऊंगा, विच वाज मच लोअर देन दैट। और फिर रास्ते में जाके गाड़ी रोक दी कि इतने दो, तुम्हें होस्टेज होल्ड कर देगा बंदा कि भाई इतना नहीं दोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो कॉशियसनेस हर जगह रखनी जरूरी है। सो यार मतलब वही वाली चीज़ है, यूरोप का एक्चुअल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरली बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं बोलते वेरी स्मूथ। यूरो पास लो या स्विस पास लो, इतनी बढ़िया ट्रेनें हैं, इतनी साफ सफाई रहती है, पीपल तो आर स्वीटेस्ट। लाइक एयरबीएनबी स्विट्जरलैंड में एक एक्सपीरियंस था मेरा कि जिस एयरबीएनबी में हम लोग रुक रहे थे वो बिल्कुल इंटरलाकन पे जो लेक है, पॉपुलर लेक ब्रिंग्स, जो एक मैजिकल सा सिनेरियो है, बिल्कुल वहीं पे थी। तो उसमें क्या एयरबीएनबी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें, क्योंकि एक तूफान वगैरह आया था तो उसका थोड़ा सा एरिया खराब हो गया था, तो वो व्यू डिस्टर्ब हो रहा था। तो वी वर देयर फॉर 5-6 नाइट्स, है ना। तो उसका मैसेज आया था मेरे पास होस्ट का कि भाई ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके 3rd नाइट तक, या ये एंड आई मतलब दिस विल बी सॉर्टेड। तो कोई इशू नहीं है, बट ये है 1-2 दिन आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। मैं ठीक है ना, मैं इतना तो आदत है हमें, कोई नहीं, हम निकल के चले जाएंगे बाहर। इंडियंस बड़े नहीं, हमें तो आदत है, इतना तो कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है हमारे लिए। वो ना सॉर्ट आउट नहीं हुआ उसका 6 नाइट तक भी। उसमें हम स्विस से फिर हम वापस पेरिस आ रहे थे, उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दिस हैपेंड एंड यू कुड नॉट एंजॉय द व्यू बिकॉज ऑफ माय वो, सो आई एम रिफंडिंग यू अमाउंट्स ऑफ 2 नाइट्स, विल दैट बी ओके फॉर यू? सोचो आप। मैंने कहा सामने से मतलब पहले तो मैंने कहा यस फिर मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने कहा यार कितना मतलब मैं आई नेवर एक्सपीरियंस यहाँ पे, कहाँ कोई कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं कहा आप करो भाई, आप रिफंड करो। So hospitality में if we talk यार crazy experiences ना, अब I mean I won't get into सही है गलत है क्यों है क्या है, but नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है मैंने, जो हमें अजीब लगती है, then again अजीब है या नहीं पता नहीं। तो यार वहाँ पे पानी भी नहीं देते होटल में, नहीं देता, ठीक है, वहाँ होटल में पानी भी नहीं देते। सो मैंने वेंट टू वेगस, आई स्टेड एट द कॉस्मोपॉलिटन, एंड कॉस्मोपॉलिटन तब मैरियट के साथ वो थी पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ मैरियट प्रॉपर्टी पर से, बट तुम वहाँ पे पॉइंट्स अर्न एंड बर्न कर सकते हो, कुछ ऐसा रहता है फंडा, आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, बट मैरियट पे थी। तो मैंने सो गोल्ड एलीट था बेक कार्ड के कारण, तो उस होटल ने क्या कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पानी फ्री है, बिकॉज यूर एन एलीट मेंबर, तुम्हें पानी फ्री है, बट ये स्टेइंग ऑन द 39th फ्लोर, तुम्हें वो फ्री पानी चाहिए तो ये तुम्हें लिफ्ट लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा और वहां से तुम्हें पानी मिलेगा। भाई यहाँ पे हमें पानी मतलब मिलता है, मतलब बेसिक अपने लिए तो बेसिक चीज है, वहाँ पे बहुत बड़ा सामान तो हो गया, सब हाँ, चीजें। मैं बताता हूँ। तो यूएस जब गया था ना, तो अपने यहाँ क्या होता है, घरों में कोई डिलीवरी वाला आता है, हम कोई भी आता है फॉर दैट मैटर, हम पानी पूछ लेते हैं, राइट। तो आदत थी। अब यूएस में पहली बार अमेज़न से कुछ मंगा लिया, वो आ गया, मैंने पूछ लिया पानी लोगे? He was shocked. He was like, "What? Take your package, man." I was like, "भाई ठीक है यार." वो मैं सोच रहा हूँ ये सारा दिन कंफ्यूज रहेगा, हुआ क्या मेरे साथ, ये पानी का क्या फंडा है। डिपेंड्स आपने कैसे पूछा, पानी लोगे? नहीं मतलब पूरी लाइट में ऐसा वाटर, गर्मी में गया था मैं, जून का टाइम था, मतलब गर्मी शुरू हुई थी। तो मैं कहा भाई उसने गलत वे में तो नहीं ले लिया। बंदे के साथ वो तो हो गया थोड़ा सा कि कल्चरल शॉक तो हो गया कि क्या हुआ। True. So coming to the next section, these guys also have a distribution channel on X that is called Reward Mavericks, and वहाँ पे बहुत बढ़िया information about credit cards, any new offers, and a lot of other things आती है. So tell me 2 things. I want to know 2 things about it. How did that start, in short, and what do you feel about the power of X? Cool. So how did it start was primarily कि if you love to travel, क्रेडिट कार्ड कभी ना कभी आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का सबसे ज़्यादा मेन मोटिव रहता है कि ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल रिवॉर्ड्स इकट्ठा करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए आओ। एंड वी सॉ दिस कम्युनिटी ऑन एक्स, और उस टाइम पे ट्विटर थी, कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है वेयर पीपल शेयर की स्टोरीज अबाउट रिडेम्पशंस, हाउ टू अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड एटसेट्रा. So it started off as like being a part of that community, helping people through that community and so on. So that was the major idea. उस time पे Sprint Visa was not even on the cards. उस time पे it was just कि एक let's have presence on the community side of things. That was the primary goal of it.
तो उसके बाद से वी हैव ग्रोन ओवर द लास्ट 1.5 years स्लोली एंड स्टेडीली, हेल्प पीपल थ्रू आउट द जर्नी. डीएम्स आते हैं, कोई पूछता है बेस्ट कार्ड क्या है. हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट रहता है. हम कहते हैं कि आप अपना वो बताओ कि what your spends are like, where do you spend, how much do you spend, so we can tell you the best card for you, because हमारी understanding है कि there is no one best one. True. Like you could say कि Magnus Burgundy is the most rewarding card in the country, but it is not the best card of the country. It may not be best for someone. True. Right? तो मेन वही चीज़ है. हमारा जितना भी हम प्रोफेस करते हैं उस चैनल के थ्रू या जिससे डिस्कशन करते हैं, इट्स मोर अराउंड how we can curate something for you, and this is not like something paid or anything. You can reach out to us. आपको कार्ड का कुछ पूछना है, कुछ पेंट्स का पूछना है, you just reach out to DMs. सब भाई हैं, सब बहन हैं, तो you reach out to us. We tell you based on what would be the best for you. So that's rewards mapping. And what do you think overall about the power of X? And do you think अभी जैसे we are in 2025 setting, having a distribution before a startup, does that help? Oh yeah, for sure. So power of X or even power of social media, right? So that is big time. Even if you see आज की टाइम में काफी D2C brands ऐसे grow हुए हैं जहाँ पे किसी की Instagram पे following थी या X पे following थी and they monetized on that, right? And even with Sprint Visa, we have been lucky कि we had this Rewards Maverick page where we could, and travel is a very close ally of credit cards, right? So we had this space where we could like reach out to a very wider audience. There's a service called Sprint Visa which we are starting, helping out people, and we got a very, very good response. X ke through we met quite a few people, even you. Yes. We met through X, and quite a few great people. We have met in person. Some we'll hopefully meet down the line. But काफ़ी genuine interactions हुई हैं. What I felt is I have had an Instagram page in the past COVID time पे. Interactions का जो nature है X का बहुत different है than Instagram. Instagram is pretty much more towards the influencer side, where X is more on the community side. And maybe मतलब मेरी thought process मतलब is limited to what I have done. Maybe Instagram पे भी influencership हो, but ज़्यादा कम्युनिटी एंगल मेरे को एक्स पे मिला है, एंड दैट पावर ऑफ द कम्युनिटी ऑलवेज कम्स बिहाइंड दैट. सो इफ यू हैव पीपल हु लिसन टू यू, हु टॉक टू यू ऑन अ डेली बेसिस, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे ऑलमोस्ट हर हफ्ते बात होती है. दे विल कम विद सम क्वेरी या कुछ ऐसे हैं कि सॉर्ट ऑफ दोस्त ही बन गए हैं. तो दैट हैज बीन अ बिग पावर ऑफ एक्स फॉर अस. And coming to the credit cards, so अभी आप लोगों के दोनों के इंडिविजुअल टॉप 3 यूज होने वाले कार्ड्स एंड व्हाई? So I think हमारे similar ही हैं cards on the same line. So one I would say EPM, which is the newly launched card. I know people would say कि उसके transfer partners नहीं हैं, but we are not very big proponents of miles transfer, क्योंकि for us flexibility matters as well, and family के साथ travel करते हैं तो miles की requirement बहुत ज़्यादा रहती है जो नहीं बनता. तो EPM being one of those, BizBlack being second, third being I would say Plaid Travel. So Plaid Travel वो एक ऐसा कार्ड है 4 लाख spend and keep it in the wallet. हाँ, तो beyond that it's BizBlack and EPM remains the constant. Atlas is something which we have both held in the past. I gotten it again, but I gave up on it for the some last time. 1 year or so. क्योंकि होता क्या था कि यार भाई again miles versus regular points that can be used anywhere. So scene ऐसा रहता है. So family of 6 adults, joint family में, तो हमें usually बहुत इकट्ठे travel करना होता है. And Atlas में क्या सीन रहता था, तो तुम क्या कर सकते हो, you can either transfer it to a hotel partner or an airline, ठीक है. एयरलाइंस में क्या फंडा रहता था, अब 6 लोगों की फैमिली है और हम साल में यूजुअली 4-5 बार ट्रैवल करके आते हैं. तो बिजनेस क्लास एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, ट्रैवल का शौक है, कीड़ा है, बट अदर देन दैट खर्चे आज सच बहुत ज्यादा नहीं है. तो कभी वो उतने इकट्ठे ही नहीं होते थे कि यार मैं एक प्रीमियम कैबिन 6 लोगों के लिए कर पाऊँ या 4 लोगों के लिए कर पाऊँ. सो वो एक साइकिल ऐसा बन जाता था कि यार 2 साल इकट्ठे कर रहे हो, साल भर इकट्ठे कर रहे हो, एंड शायद एक बार कर पाओगे यूज. एंड फिर होटल्स में फॉर इंस्टेंस एक्वार इज द मोस्ट बिलव्ड
ट्रांसफर पार्टनर अपने स्पेस में। एक और मैं विजिटिंग इन जयपुर राइट नाउ, ठीक है, अभी जयपुर में भी मुझे कहीं रहना है। Accor has just one property that is in the city and that is not that great of a property अगर तुम्हें फैमिली के साथ रहना है, ठीक है, तुम्हें भाई शहर के बाहर रहना पड़ेगा। and if you are not looking for a resort kind of vacation, तुम्हें शहर में जाना है कहीं, तो तुम बहुत दूर लोकेटेड हो, ठीक है। and the same happened in Boracay as well. so Boracay में Accor has this property called Movenpick. it's at one end of the island, जो आइलैंड का मेन पार्ट है वहाँ नहीं है, बट आई हैड पॉइंट्स लाइंग अराउंड फ्रॉम वेडनेसेरा, तो मैंने एनीवे किया। 2 दिन मैंने स्मार्ट बाय से चुपचाप किया। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज कार्ड्स इज बिज ब्लैक हो गया या इनफिनिया हो गया या ईपीएम फॉर दैट मैटर हो गया कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम कहीं भी यूज कर सकते हो इनके पॉइंट्स, राइट। सो एंड एक तो ये हो गया, एक और में लोकेशन इज एन इशू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। द सेम हैपेंड इन ताइवान एज वेल। ताइवान में, ताइपे में अंदर कोई होटल है ही नहीं। एक होटल था ताइपे एयरपोर्ट के पास, अभी शायद वो भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एन इशू एंड ऑन द प्राइसिंग फ्रंट एज वेल, मतलब काफी फ्रीक्वेंट मैंने देखा है यार कि बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें होटल जैसे मिल जाते हैं जो एज गुड होटल्स होते हैं एंड आर प्राइस मच बेटर। तो वो तुम्हें अगर बस एक वैल्यू खुद को समझाने के लिए करना है कि हाँ भैया 1.8 की वैल्यू मिल गई है मुझे, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर तुम इफ यू लुक एट द रियल वैल्यू, तो तुम भाई एक एज गुड होटल उससे आधे प्राइस में अगर ले पा रहे थे एंड तुम्हें वो इन सो कॉल्ड परसेंटेज टर्म्स वो 4% दे रहा था, ये 3.3 दे रहा था, एंड योर फॉर अ सिमिलर प्रॉपर्टी तुम्हारी रिडेम्पशन में भी तुम्हें सिमिलर वैल्यू मिली है, तो तुम एनीवे ये कार्ड भी यूज कर सकते थे, सिमिलर ही तो बनती ना स्टोरी। तो दैट इज व्हाई वी हैवंट बीन यूजिंग एटलस एज मच। एंड बट अभी मैंने लिया था, गाड़ी लेने का एक प्लान था, तो उसमें आई प्लान ऑन यूजिंग इट। माइलस्टोन वाला वो बन जाएगा। गाड़ी तो मैग्नेसेरा में अगर आ जाती, हाँ वो एक स्टोरी था, बट चलो मैग्नेसेरा स्माइल आ जाती है उस टाइम में जो हो पाया वो किया। ये बात है। बट बहुत कम गया, लेट टू द पार्टी थे। मैं तो बहुत लेट था, 6 महीने 7 महीने ही थे बस। बट देन वो भी नहीं किया लोग, तो मतलब हमें बाद में पता चलता है कि लोगों ने तो मिंत्रा से गोल्ड खरीदा, 1 लाख रुपए के गोल्ड में 70,000 के पॉइंट्स ही वापस आ गए। तो वी डिडंट इवन नो दैट। So and 2 कार्ड बताया, आई थिंक लाइक लास्ट any other other than travel card, other than travel, so other than these यार एक इंडसइंड DigiDie में काफी फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं, बट वो भी अगेन पता क्या है, जैसे मैंने बताया हमारे साथ खर्चे नहीं है, हम ईटिंग आउट भी हमारा उतना बड़ा खर्चा नहीं है, बट वो ऐसे है कि कुछ दोस्त हैं वो यूज कर लेते हैं आगे, तो मतलब काम आ जाता है वो कार्ड। बट देन अगेन इट्स नॉट समथिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट। UPI कार्ड फेवरेट? यूपीआई कार्ड यार अंटिल रिसेंटली मैं यूज कर रहा था IDFC विस्तारा, बट अभी IDFC विस्तारा जा रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉर अनदर वन। बट अभी जैसे इस महीने में क्या कर रहा हूँ, स्केपिया का रुपए लिया है मैंने, तो 15,000 हिट करके आई हैव अपकमिंग ट्रैवल इन द नेक्स्ट साइकिल, तो उसका जो वो है ना कि 1,000 रुपए की शॉपिंग के कॉइन्स वापस आ जाते हैं, तो I'll be able to use that, तो इसलिए अभी स्केपिया पे 04x। हाँ 04x मतलब शायद उतना नहीं यूज कर पाऊंगा मैं, मतलब आई हैव अदर कार्ड्स जैसे इनफिनिया का GBP के साथ, तो आई माइट नॉट यूज दैट। बट रुपे कार्ड अभी के लिए स्केपिया मैंने इसलिए मूव कर दिया है खाली कि भाई एक तो क्लटर फ्री बैंक स्टेटमेंट रहता है, क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, एंड 15,000 अगर मैं मंथली बर्न कर दूंगा तो आई कैन गेट I'll be taking a flight twice from domestic flight twice in the next cycle, तो मुझे पता है 2,000 रुपए मुझे वहां से वापस आ जाए। ट्रू। एंड फ्यूल कार्ड? फ्यूल कार्ड यार मेरा प्राइमरी मैं मतलब नो फर्स्ट कार्ड फ्लैट ट्रैवल ही रखता था कि 6-7% जो भी उसका आता है HP पे तुम सीधा डायरेक्ट स्वाइप कर सकते हो उसे। दैट्स इट। इस पर मेरा माइलस्टोन जल्दी हिट हो गया था, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट एनीमोर। अभी के लिए वो Amazon से IDFC फास्टैग वाला यूज हो रहा है। यूटिलिटीज के लिए बिजब्लैक डायरेक्ट पेज़ैप से या Amazon पे। गोल्ड? गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एक बार लिया आज तक सिर्फ बिग बास्केट में जब चल रहा था उस दिन भी। अभी जो उसमें क्या हुआ, सभी ने ले लिया उस टाइम पे, पर डर लगता है मेरी ऑनेस्टली, मैं डर लगा नहीं। और वो भी हमने लास्ट मोमेंट पे जब वो मिल रहे थे, बस इस तरह की चल यार कर लेते हैं ट्राई, सब ले ही रहे हैं, पूरे फील्ड भर गई है, जनाब से पहले सेफ्टी टाइप्स दे रहा है वो, तो ले लिया। मतलब हमें जो डील मिली थी ना वो ऐसा था कि जैसे वी डिडंट लुक एट कि इफेक्टिव रेट रिवॉर्ड्स के बाद क्या बनेगा,
हमें नेट डिस्काउंट के कितना? बाद वो सस्ता पड़ रहा था, तो हमने वो ले लिया कि चलो इसके ऊपर रिवॉर्ड्स तो बेनिफिट। ट्रू। अगर वो ऐसा होता ना कि 9800 का गोल्ड मार्केट में 9800 का ही मिल रहा है एंड उस पर रिवॉर्ड 15-20 जो भी परसेंट है, वी वुडंट हैव टेकन द प्लंज इवन दैट टाइम। मेक सेंस। तो वो वाला फंडा था वहाँ पे। एंड फेवरेट होटल ग्रुप कोई ऐसा नहीं, अभी कुछ भी नहीं? None. Nothing with मतलब some As such, any particular Magnus property के that you कारण- enjoyed काफी? मैग्नस के कारण काफी बड़ी प्रॉपर्टीज का वो हुआ है कि हाँ जा पाए हैं। सो अभी फैमिली के, जैसे मैंने बताया कि फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो रिसेंटली कराबी गए थे, वी स्टेड एट द सोफिटेल कराबी, अच्छी प्रॉपर्टी है काफी, तो वो सब हो पाया है। बट एज सच कोई खास प्रेफरेंसेस नहीं है यार। अभी मॉरिशियस जा रहा हूँ द वेरी नेक्स्ट मंथ, एंड पहले 3 दिन आई एम स्टेइंग एट अ BNB जिसका 2 BHK का कॉस्ट है 9,000 रुपए पर नाइट। सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम लोकेलिटी अगर होटल्स में घुसूं मैं तो दैट इज 17,000 पर रूम पर नाइट, मतलब एवरेज प्राइसिंग 15, 18, 20,000। तो आई एम ओके विद दैट BNB, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड रिव्यूज। हाँ, बट बाकी 3 दिन में मेरे पास एक और के जो लास्ट चंक ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम मैग्नसेरा पड़ा था वो यूज कर रहा हूँ। वो होता है तो यूज होता है। हाँ, मतलब वो वही है कि ऐसा है ना कि एक और में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा लगता है यार कि या तो तुम आईबिस पे स्पेंड करो, हाँ, ठीक है, या तुम एक एस्पिरेशनल प्रॉपर्टी पे स्पेंड करो। नोवोटेल्स वाला नहीं, सेक्शन है ना, mid-segment वो नहीं। सेंस ही नहीं बनाता यार। वो मेरिट बेटर। सिमिलर प्राइस में तुम्हें और होटल्स इतने ज्यादा मिलते हैं तो जहाँ पे ये देख के काफी- लगता है कि भाई व्हाई इज दिस प्राइस, हाउ मच इज सो मच। इवन आइबिस बहुत महंगा हो जाता है कई बार। हाँ। अभी दिल्ली वाला दिल्ली वाला महंगा होता है बहुत महंगा होता है भाई, महंगा 26,000 रुपए का आता है एक बार। हाँ। 26,000 रुपए। देखा होगा। हम जब कॉन्फ्रेंस पे गए थे दिल्ली अभी रिसेंटली, तो तब ऐसी ही थी प्राइसिंग वहाँ पे। So I'll tell you 2 stories about hotel. एक तो जैसे अभी आईबिस वाली बात हुई ना, तो ही वेंट टू हांगकांग बिफोर मी, सो ही बुक्ड आईबिस, तो फैमिली के साथ गया था। मेरा बाद में बड़ी plan गलती था। थी वो। कहता भाई रूम बहुत छोटे हैं, आईबिस मत करियो, कुछ भी करते हैं आईबिस मत करियो। अरे ये अपने वाले तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा है। बाहर के टोक्यो, सिंगापुर एंड हांगकांग आर एनीवे फेमस कि वहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते हैं, और वहाँ मैंने गलती कर ली आईबिस करने तो की। मैं कहा भाई साहब। यार पॉइंट्स ही तो हैं, मैं कहा नोवोटेल और सिल्वर ही कर लिया वहाँ पे। मैं चलो ठीक है, गुड डिसीजन। सेकंड, एज यू सेड कि फेवरेट होटल ऐसा कुछ नहीं है, एक मेमोरी है। आई वाज ट्रैवलिंग, बाली में था मैं उस टाइम पे, एंड कोर्टयार्ड मैरियट था, नॉट अ बिग प्रॉपर्टी, नॉट एनीथिंग, और मेरे पास कोई मैरियट का उस टाइम पे कोई स्टेटस वगैरह कुछ नहीं था। दे डिडंट नो कि मैं मैरियट का मेंबर भी हूँ या नहीं, मुझे खुद को भी नहीं पता था मैं साइन अप कर रखा है नहीं कर रखा। आई वेंट देयर, मेरा बर्थडे था अगले दिन, चेक इन के अगले दिन, और मैं उस दिन नूसा पनीता जा रहा था, तो दैट्स अ डे ट्रिप, तो सुबह सुबह निकलना पड़ता है 6 बजे। तो 6 बजे आई एम स्टैंडिंग नीचे की, मेरी गाड़ी आएगी 6:30 बजे फॉर पिकअप। 6 बजे आई एम सिटिंग विद माई वाइफ देयर, एंड दे, मतलब उन्होंने चेहरे से, मतलब ऑब्वियसली इतने सारे कैसे रुक रहे हैं, देर लाइक कि इस बंदे का बर्थडे है। उनको मैं नीचे आया हूँ, गेट मैंने कोई रूम नंबर नहीं बताया क्या है, हाँ कि भाई ये बंदे का बर्थडे है, स्टाफ चेंज हो चुका है कि चेक इन वगैरह से, वो दे समहाउ न्यू कि ये वही वाला बंदा जो वहां से उतर के आया। दे ब्रॉट आउट अ केक सुबह 6 बजे, उन्होंने वो वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी करवाई हमारी सुबह 6 बजे, so we shared the cake with them. So sort of obviously like didn't marry me to marry it, but something like one thing कि हाँ एक होटल ने बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेरे लिए किया, मतलब फॉर मी दैट वाज कि मतलब वी डोंट रन आफ्टर स्टेटसेस कि मेरे को ये वाला चाहिए, बट दैट वाज लाइक कि मतलब मैं आई एम नॉट इवन सिल्वर और एनीथिंग, बट दे ब्रॉट आउट अ केक इन द मॉर्निंग की बर्थडे, तो दैट वाज अ गुड जेस्चर ऑन देयर पार्ट। आई थिंक फॉर मी इस केस में रैफल्स उदयपुर हैज बीन अ क्रेजी एक्सपीरियंस भाई। मतलब आई थिंक वो लोग हॉस्पिटैलिटी उस पॉइंट पे ले जाते हैं कि आपको खुद बुरा लगने लगता है कि भाई मैं अब रुक जाऊं मांगना, क्योंकि वो मना ही नहीं करते रहे होते हैं, मतलब आप बोलो उनके पास सोल्यूशन है। I've been to Udaipur as well multiple times, and the most recent one was for my honeymoon in fact। तो तब क्या था, कोविड के जस्ट बाद शादी हुई थी, और तब रेस्ट्रिक्शंस अभी चल रही थी, सब कुछ खुला नहीं था, तो इंटरनेशनल ट्रैवल में अभी दुबई और एक आध जगह खुली हुई थी, कुछ भी ज्यादा नहीं खुला हुआ था। सो राजस्थान ने वो नहीं कर रखा था कि कोविड रिपोर्ट चाहिए ये वो, तो जीरोड इन ऑन उदयपुर, एंड क्योंकि पसंद हमेशा से उदयपुर रहा है, ठीक है, तो पिटी आल्सो ना, हाँ। सुंदर भी। तो हम लोगों ने क्या किया, वी डिड पैलेस हॉपिंग। तो जब शिव निवास पैलेस, ताज, फतेह प्रकाश, फतेह सागर, फतेह प्रकाश,
एंड ताज लेक पैलेस राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो तुम्हें ऐसा नहीं होता कि तुम्हें दूर जाना पड़ रहा है। तो हमने एक एक रात टाइप्स वैसा किया था उनमें, एंड वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ताज की हॉस्पिटैलिटी भी नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब इट्स वेरी नाइस। तो ऑल मतलब स्टेकेशन टाइप से किया, क्योंकि तब वो भी थोड़ा डर भी लगता था कि भाई कोविड चल रहा है, बाहर ज्यादा कहीं घूमने नहीं जाना ये वो, तो ऑल मील्स इंक्लूसिव, वहीं खा रहे हैं, बस वहीं बैठे हुए हैं। और वो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, ऐसी हैं, spend the day। आपको कहीं जाने की जरूरत I नहीं। did not like शिवनिवास पैलेस बाय द वे। शिवनिवास मुझे तो क्या है कि उदयपुर में you have been to उदयपुर राइट, तो लेक पैलेस जहाँ है पिचोला के अंदर, उसके जस्ट बाहर है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के 2 सेक्शंस है जो होटल्स बने हुए हैं। सो द वन सेक्शन इज ताज, जो ताज के पास है, दैट इज द ताज फतेह प्रकाश पैलेस। दूसरा सेक्शन है जो रॉयल फैमिली में से एक, आई बिलीव वो स्प्लिट हो चुकी है रॉयल फैमिली, एंड एक फैमिली उनमें से शिवनिवास पैलेस अभी चला रही है। तो शिवनिवास पैलेस मुझे वेरी ऑनेस्टली पसंद नहीं आया, बट ताज की प्रॉपर्टीज दोनों बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। है भी आइकॉनिक ताज लेक पैलेस, आई थिंक द फर्स्ट प्रॉपर्टी उस लेवल पे। ऑल्सो सेम कॉम्प्लेक्स में थे ताज एंड शिवनिवास, एंड ताज में मैंने छोटे रूम्स करे बिकॉज भाई 35-40 हजार के तो वही रूम्स थे। शिवनिवास पैलेस का जो स्वीट रूम सबसे बड़े वाला था, दैट वाज अबाउट द सेम प्राइस। सो आई वाज लाइक यार अब ठीक है, हनीमून बार बार थोड़ी होता है, ठीक है कोई नहीं, लेट्स स्प्लर्ज। एंड मैंने वो रूम किया यार, भाई वो तो डरावना था। मतलब वो कैसा रूम था कि 4 सीलिंग की हाइट का वो है, और उसके अंदर तुम्हारा बेड लगाया हुआ है उन्होंने, साथ में एक डाइनिंग रूम है, साथ में बहुत बड़ा सा बाथरूम है, साथ में एक हॉल है। दिस होल थिंग, मतलब तुम एक बेडरूम में एक बेडरूम में ना तुम्हारे सामने गेट तुम्हें दिख रहा है जो बंद है, बट ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा बेडरूम है, फिर आगे गेट है, फिर आगे एक और गेट है, फिर उसके आगे गेट है जो तुम्हें मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से वो कर रहा है। तो वो गेट इतना दूर है कि तुम्हें भाई डर ही लगी जा रहा है कि भाई कोई आ तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था वो रात तो भाई, मतलब डर डर के कटी थी। तो डिड नॉट लाइक शिवनिवास, एंड वैसे भी जनरल हॉस्पिटैलिटी, फूड एटसेट्रा वाज मच बेटर एट ताज, Obviously. बोथ द ताज। फूड वाइज मेरे को मैरियट बेस्ट लगता है, JW स्पेशली मैरियट, आई थिंक टॉप नॉच, और ITC, ये दोनों खाना तो मतलब बहुत बढ़िया रहता है। राजपुताना जो भी है मतलब उनके सबके खाना बढ़िया रहता है। अकॉर के ओवरऑल में खाना मिड ही लगता है सब जगहों पे। एंड एक जैसे अलीला फोर्ट खुला है नियर बाई, वो हिल्टन का पार्ट है, बट क्रेजी है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज राजस्थान में ऐसी हैं, रैफल्स हो गई, अलीला हो गया, अभी रैफल्स रणथंबोर भी आ रहे हैं, और हाँ 2-3 नई प्रॉपर्टीज हैं कब तक आने वाली है, तो वो एक चीज रहेगी। सो आई थिंक ये वाला सेक्शन भी यहीं पे वाइंड ऑफ करते हैं।